रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. फाइन. So again, good afternoon. So this is the second part of our second chapter. This is a discriminant analysis, and then we'll go for linear discriminant analysis and what are the different functionalities of discriminant analysis. Fine. So टर्म आपके सामने आती है, दिस इज एन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. टेक्स्ट को बगैर पढ़े के आप कुछ सजेशन दे सकते हैं. दिस इज एन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. द वर्ड डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो किस चीज़ का कुछ ना कुछ. अब हमारे पास डेटा है, उस डेटा के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है. सो दिस टर्म particularly this term reflects a discrimination between two types of data. Fine, 2 types or 3 types or 4 types and so many types of data. तो हमको discrimination करना. तो this word our discrimination analysis is just an your statistical technique used to classify the observation that are your input. So it is used to classify your observation into non-overlapping groups. Again, this is an important thing, that we are going for discrimination or classification of our observation into some non-overlapping group. And again, this is supposed to be in supervised technique. So मैं बताता हूँ supervised technique क्या होगी. Again, now we are moving towards something like machine learning, but this is a statistical approach. This discriminant analysis and then दिस लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. हमारे पास उसके दो यूज़ हैं. हम क्लासिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, एज एन क्लासिफिकेशन भी यूज़ करते हैं. और इन जनरल जब पुरानी चीज़ें थी तब क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ करते थे. नाउअडेज वी आर यूजिंग दिस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस फॉर योर डायमेंशन रिडक्शन, बट एज पर योर सिलेबस दे आर सजेस्टिंग ओनली फॉर गोइंग फॉर दिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. सो हम अभी जो है उसको सिर्फ क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही यूज करेंगे. So again, this is used to classify your observation into non-overlapping groups. So when I am saying that non-overlapping group, so it means that we are having some clear-cut idea that दो अलग अलग टाइप के डेटा हैं, तो दो अलग अलग टाइप के डेटा हैं वो आपस में नहीं होंगे. जैसे हमारे आपकी क्लास में दो ग्रुप्स हैं, एक लेट्स से एक ए साइड का ग्रुप है, एक बी साइड का ग्रुप है. तो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो दोनों ग्रुप में होगा. हर स्टूडेंट या तो ए ग्रुप में होगा या बी ग्रुप में होगा, दोनों ग्रुप में नहीं होगा. सो दिस इज सपोज टू बी एन नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप. एक दूसरे का इंटरसेक्शन नहीं आएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन नल आएगा. सो दिस इज सपोज टू बी नॉन ओवरलैपिंग based on their scores. And so how we can classify, so we can classify based on their score or one or more quantitative predictors, और हम कुछ ना कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोच लगाएंगे, कुछ स्कोर्स निकालेंगे, उस स्कोर्स के हिसाब से हम उनको क्लासीफाई करेंगे. लेट्स एन एग्जांपल, लेट्स से अ डॉक्टर कुड परफॉर्म डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस टू आइडेंटिफाई देयर पेशेंट्स. तो आइडेंटिफाई देयर पेशेंट्स एज एन they are having a high or lower risk of stroke. So this is my predictor variable. Now पिछली बार जब तक हमने रिग्रेशन करा था, वी आर सपोज दैट वी अज्यूम दैट आवर प्रिडिक्टर वेरिएबल और आवर रिस्पॉन्स वेरिएबल इज जस्ट एन कंटिन्यूस डेटा. तो हम वहाँ पे कंटिन्यूस कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस c कर रहे थे, तो या y इक्वल्स टू x बीटा कर रहे थे, तो y जो था वो 1 2 3 4 5 6.123 कुछ भी वैल्यू ले सकता था. नाउ वी आर सेइंग दैट दिस इज वी आर कंसीडरिंग नाउ is at as an quantitative value, or we can say that this is a discrete value. So I am having only fixed type of value, either 0 or 1. This is for the binary classification, or let's say 0 1 2 1 2 or 3. So this is an again 3 class classification, or let's say high or low value. So this is an again binary classification, or let's say we are having 7 types of color. तो आपके पास जितने भी कलर होंगे आप उसको मोटा मोटा 7 कलर्स में, रेनबो के 7 कलर्स में डिवाइड करेंगे. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट यस कि we are going for classification. So this is similar to your regression, but in case of regression you are, I'm not saying that is similar, but yeah, we are starting that we are going for similar types of things, that we are having the input variables available and we are going to classify instead of predicting all those values. Again here we are again predicting value, but here we are predicting the classes of the value. Now in the regression analysis we are predicting the values of continuous values over there. So it can take any values right from your minus infinity to infinity, while in case of your classification in classification you are having the fixed set of values. So आपकी वो values या तो high होगी या low होगी in this case. So again while we are going from this case, so doctor can discriminate whether
after observing their patient's data, so he can classify that a particular patient is having a higher risk of stroke or the lower risk of stroke. So what is its data? So is data contributes on, let's say, cholesterol level and body mass, this and BMI, then lifestyle behaviors like minutes of exercise per week, then packs of cigarette per day. So this is assumed to be the first this is x1, this is x2, again this is an x3, and this is an x4. So we can say that these are the attributes or these are the columns of our data. So finally we are now these columns and data are now in the classification and in machine learning are said to be features of your data. So these are said to be the features. So this is feature 1, this is feature 2, this is feature 3, this is feature 4. Is it fine? So we are going for a classification where your predictor variable is now a discrete variable or the quantitative variable. So it can contains only fixed amount of data, fixed set of values. So it cannot take any values right from minus infinity to infinity. Is it fine? Is it understandable to you? Yes. Yes, Shall I sir. proceed? Yes, sir. Okay, Yes, well, sir. Yes, sir. thank you. Now, so when we are going for two group discriminant analysis, or we can say that two class classification. So let's say again we are having a common research. This is a common research problem that involves classifying your observation into one of two groups. Either it is let's say a student belongs to one group or two group, but we can have more quantitative values. So your predictor variable, if you are having more than two classes, then we can say that it is an n group discriminant analysis, or in general we can say that this is an n class classification problem. So it solely depends on the your predictor variable or the your response variable, that is your y. Now we are not having any equation like y equals to mx plus c, but yeah, we can have some statistical rules and we can have some different statistical scores. On the basis of that we can classify all those things. So when there is only two classification group, the discriminant analysis is just like in your multiple regression. Fine. So मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कुछ एक या दो स्लाइड में एग्जांपल आएगा. So we can have some discriminant analysis. So like we'll start with that our dependent variable is supposed to be a categorical variable. So let's say when we are going for this two group analysis, then our categorical variable can hold only two values, either value 1 or a value 2. Then you are having some observation, and this observation, हाँ बोले सर ये जो दो ग्रुप हमने मतलब डिवाइड किए हैं, दो ग्रुप इसमें लिखा हुआ है दो से ज्यादा क्वांटिटी, तो दो से ज्यादा ग्रुप होंगे अगर दो नहीं, अगर मेरे पास दो से ज्यादा ग्रुप होंगे, जितना मेरे पास आउटपुट वेरिएबल होगा. फाइन. जैसे आपकी क्लास में दो तरह के ग्रुप हैं, तो मैं बोलूंगा कि मेरे आउटपुट क्या होगा कि हरेंद्र या तो ग्रुप 1 को रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप 2 को रिप्रेजेंट करता है. अब मान लीजिए मेरा प्रिडिक्टिव वेरिएबल बोल रहा है कि मेरी क्लास में, आपकी क्लास में 4 तरह के ग्रुप्स हैं, तो हरेंद्र ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 को डिवाइड करता है. तो आपका प्रिडिक्टर वेरिएबल जितने टाइप की वैल्यू ले सकता है, उतने नंबर के हमारे ग्रुप्स बनेंगे. मैं बताता हूँ. वेट मैं हमारा एक एग्जांपल आएगा, हम उस एग्जांपल से देखते हैं. फाइन. सो फाइन. सो our groups are solely depends on the number of values a dependent variable can hold. So right from again starting with your observation, and based on those observation, what we'll do is that we'll predict the score. Well, this observation refers this particular observation is related to group 1, or this particular observation is related to group 2. Fine. So either we can use, if these are supposed to be let's say linearly separable, then we can use a regression line that is used to be classify all those groups. If we are saying that these are the linearly separable, again linearly separable क्या आएगा, मैं उसकी इक्वेशन भी आपको वो भी आएगा, मैं आपको नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में बताता हूँ. सो द एफिशिएंसी ऑफ योर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन इज मेजर्ड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ योर करेक्ट असाइनमेंट्स. मतलब हमने वो एक hypothesis पढ़ा था. This is we are having some precision, we are having some recalls and specificity and your accuracy and so on. So हम उन सारी चीज़ों को बेस करके हमारी इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं कि हम कितना सही एनालिसिस कर रहे हैं. Isn't fine. So let's say this is two group discrimination. Fine. So this is our observation
हमारा एक ऑब्जर्वेशन से क्या स्केल है हम उसको छोड़ दें, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, दिस ऑब्जर्वेशन लाइज ओवर हियर, सो दिस इज बस one type of observation, this is an again another type of observation. So what we can do is that we can draw a line over here, so I can draw a line over here, and that is why that is how I can say that I can classify all those groups. So दिस आप यहाँ देखेंगे कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू पॉइंट है, वो इस तरफ नहीं आ रहा है और ये रेड पॉइंट लाइन की उस तरफ नहीं आ रहा है, तो हम एक रिग्रेशन लाइन लिख सकते हैं, दिस इज y इक्वल्स टू x बीटा. फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर classifying all those things. So again this is just an usage of your regression variable, but अब डिफरेंस देखिएगा, क्योंकि रिग्रेशन लाइन में हमने मान लीजिए हम इसको ऊपर ऊपर ही कुछ बनाते तो हमारी रिग्रेशन लाइन इसके आसपास आती है, इसके आसपास आती है, बट वी आर इन टू ग्रुप्स ऑफ डेटा. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज दैट वी आर लाइक टू क्लासीफाई ऑल दोस डेटा, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए कि वो दोनों लाइन इन दोनों के इन बिटवीन आनी चाहिए, ताकि इन दोनों को ग्रुप्स को डिवाइड करे, और डिवीजन भी इतना अच्छा हो कि उनका लेट्स से कॉन्फिडेंस इंटरवल हो सकता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत अच्छा हो सकता है. लेट्स से एक लाइन मेरी सॉरी स्ट्रेट में नहीं खींच पाया, सो दिस इज अगेन मैं वन लाइन, दिस इज लाइन 1 सपोज, एंड दिस इज अगेन लाइन 2 इज सपोज, एंड अगेन दिस इज एन लाइन 3 सपोज. तो अगर हम इन तीनों लाइन से क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम बहुत सारी लाइन बना सकते हैं, वी कैन हैव इनफाइनाइटली क्लासिफिकेशंस लाइन अवेलेबल ओवर हियर. सो लेट्स से वी आर इन 3 टाइप्स ऑफ लाइंस, 3 डिफरेंट लाइंस आर अवेलेबल ओवर हियर. सो लेट्स से आपको इस एग्जांपल से कौन सी लाइन सबसे बेस्ट होती है जो इन लोगों को बेटर क्लासिफाई कर रही है? L2 सर जो L2 L2 क्यों? क्योंकि दोनों के बराबर है, दोनों को बराबर ही डिवाइड करा है, सो दिस इज सपोज टू बी गुड एस्टिमेट और गुड क्लासिफिकेशन. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा है. हो सकता था एक पॉइंट यहाँ हो, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट रेड पॉइंट और एक पॉइंट रेड सॉरी दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये क्लासिफिकेशन बाउंड्री हम सपोज कर सकते थे कि यहाँ तक का पार्ट हम इसको मान रहे हैं कि दिस इज एन ब्लू पॉइंट, और जैसे ये यहाँ का कोई पॉइंट आ गया तो वो रेड पॉइंट, जबकि आपके सारे रेड पॉइंट्स जो है वो यहाँ तक हैं, तो यहाँ का तो कोई कॉन्फिडेंस बनता नहीं है. सो दिस इज सपोज टू बी एन गुड एस्टिमेटर लाइन. हम इसको भी पढ़ेंगे गुड एस्टिमेटर लाइन कैसे बनती है. सो अगेन वी आर गोइंग फॉर दिस टू ग्रुप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. तो अगेन स्टार्टिंग विथ योर discriminant analysis with your standard regressor analysis is just like it uses the categorical variable as an dependent variable, while in case of your regression analysis you are using continuous variable as an dependent variable or the predictor variable or the response variable. Fine. So हमारे पास डेटा यहाँ देखें, यहाँ पे कोई कंटिन्यूस डेटा नहीं है, आपका डेटा यहाँ, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस ही हैं, ये हमारी सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है ना. तो ये ऑब्जर्वेशन में क्या बोल रहा है कि मेरा y जो है ये y बता रहा है कि या तो ये y इस तरफ होगा या y इस तरफ होगा, ये कोई कंटिन्यूस वैल्यू नहीं ले रहा. जैसे मैं बोल सकता हूँ कि दिस y बिलोंग्स टू आइदर दिस इज ब्लू और दिस इज रेड, तो हमारे पास कोई कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं हो रहा. अदरवाइज रिग्रेशन में क्या हो रहा था, रिग्रेशन में हमारे पास जो वैल्यूज आ रही थी वो सारी वैल्यूज जो है कंटिन्यूस आ रही थी, इजंट इट. सो वहाँ पे y1 2 3 4 13.6 93.46 एंड सो ऑन ऐसी कुछ वैल्यू ले रहा था, यहाँ पे दो वैल्यू ले रहा है, आइदर रेड और आइदर ब्लू, भले ही इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं. सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग दैट आवर रिस्पांस वेरिएबल और आवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज taking only the categorical value over here. Fine. So this is our categorical variable over here. Now, when we are going from this two group discriminant analysis, we are just going for like an multiple regression analysis. So we are having some steps in analysis. मेरे पास दो तरीके हैं, मैं या तो statistical से बात कर सकता हूँ या मैं डेंसिटी एस्टिमेशन से बात कर सकता हूँ. तो मैं डेंसिटी एस्टिमेशन पे जाता हूँ. नेक्स्ट क्लासेस में अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन के साथ भी हम उसको कवर कर लेंगे कि रिग्रेशन लाइन से हम उसके साथ कैसे जाएंगे. पर आई सपोज कि मैंने जिस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन दिया है, दिस इज अ सिंपलेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल. सो हम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन के साथ जाएंगे. हमारे पास 2-3 तरीके हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के. सो ये जो तरीका है थोड़ा सा टफ है, सो मैं इसको छोड़ रहा हूँ. अगेन इफ यू लाइक टू से मैं इसको
समझा देता हूँ. दिस इज वी हैव टू एस्टिमेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्योंकि हमको ये लाइन बनानी है तो वी हैव टू एस्टिमेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट. बट अब हमको ये देखना है कि लाइन ये भी आएगी ये भी लाएगी, तो ये कौन सी लाइन सबसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये इनके बीच में फिट नहीं हो रही, इन दोनों के एग्जैक्टली सेंटर में आ रही है. तो हमको क्या रिग्रेशन लाइन लेनी है. सो वी हैव टू डिफाइन अ रिग्रेशन इक्वेशन which is like an discriminant function. तो मैं आपको discriminant function भी बताता हूँ. Then assess the fit of regression equation to your data. Then assess the ability of regression equation to correctly classify the observation. तो हम यहाँ पर हमारी accuracy निकाल सकते हैं, हमारा precision निकाल सकते हैं. Then we are going again for recall. So ये तो हम लोगों ने last semester में पढ़ चुका है. Then we'll assess the relative importance of our predictor variable. So हम वो एफ टेस्ट और उस पर नहीं जाएंगे. सो वी अगेन आई एम स्टार्टिंग विद आवर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन. वो जो लाइन हमारी बन रही है उस लाइन को हम रिग्रेशन लाइन नहीं बोलते, हम उसको सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास वो लाइन जो है दिस इज सपोज टू बी अ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन. सो दिस इज वन, हम उसको बोल सकते हैं कि वो लाइन जो हम खींच रहे हैं वो एक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है, एक फंक्शन यूज कर रहे हैं जो अलग अलग इन सारे डेटा को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है. तो इन सारे डेटा को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए एक हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन. डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं. तो अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी हम रिग्रेशन की लाइन को एज अ डिस्क्रिमिनेटिंग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो लेट्स से वी आर हैविंग सम पैरामीटर्स अवेलेबल. दिस इज पहले मैंने वहाँ बीटा यूज़ करा था, यहाँ w यूज़ करा. यू कैन आइदर चूज लाइक एन बीटा. सो यू कैन सपोज दैट दिस इज एन बीटा. सो वी आर हैविंग अननोन पैरामीटर्स. यूजुअली डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन जो होता है वो परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स एंड सो ऑन न्यूरल नेटवर्क में वाइडली यूज होता है. तो वहाँ पे हम उसको बीटा यूज नहीं करते, वहाँ पे हम वेट्स यूज कर सकते हैं. तो वेट यूज करते हैं तो वहाँ एज एन कन्वेंशन w यूज होता है इंस्टेड ऑफ बीटा. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप a भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. अगेन हम डेटा को एज एन कन्वेंशन x यूज कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है आपको जैसे यूज करना है. सो लेट्स से वी आर हैविंग अननोन पैरामीटर्स. सो वी आर हैविंग अननोन पैरामीटर्स. लेट्स से वी आर हैविंग d unknown parameters. So it means that we are having d-dimensional data that is being available over here. So this is we are having w0 to wd data that is being available, and this is my data available. So these are the unknown parameters that are being available. And let's say we are having feature vectors that are your columns. So this is a x1, x2, x3. So we can say that your x belongs to your d dimension. So it contains d dimension. So real, and this is in a real dimension, d dimensions data available. So what is our discriminating function? So this is my discriminating function. This is g function g of wx. हमको इसके पैरामीटर्स, हमको इनकी वेटेज नहीं पता. सो हमने क्या यूज करा था, हम उसको एज एन लीनियर regression functions use कर रहे थे. तो this is my wixi plus w naught, or we can say that we can augment our x matrix. So this is my x matrix right from x1 to this is xd, and I can augment my matrix by another parameter. Let's say this is x0. So this my matrix is again supposed to be the x tilde, and it contains only 1. So this is how we can write, and this is supposed to be x tilde. पर अब मैं जब भी आपको x बोलूंगा तो आप ये मान के चले गया कि वो x tilde ही है, वो augmented matrix है. तो by convention आप ये मान के चले गया कि आपका x naught जो है वो 1 रहेगा, बाकी आपके सारे मैट्रिक्स होंगे. तो इंस्टेड मैं इसको हटा रहा हूँ. दिस इज माई जस्ट एन assumption. Fine. So this is supposed to be in a linear discriminant function or the linear classifier. Why it is linear? Because it is linear in your parameter. So this is linear in parameter, although it is although again this is again linear in xi, but xi is linear or not non-linear, it doesn't matter, it is not important. But our focus is on this number of this weight parameters or the unknown parameters or the weights associated with each particular column. Because आपके पास क्या होगा कि इस x1 को हम कितना वेट दे रहे हैं तो हम इसको w1 वेट दे रहे हैं. दिस xd को हम कितना वेट दे रहे हैं तो इसको हम wd वेट दे रहे हैं. तो ऐसे हम काम कर रहे हैं. सो दिस इज सपोज टू बी इन लीनियर. अगर हमारे पास लीनियर, अगर ये लीनियर नहीं होता तो हमारे पास लेट से कोई स्क्वायर वैल्यू आती, यहाँ पे हमारे पास क्यूब आती, तो वी कैन से दैट दिस इज अ नॉन लीनियर फंक्शन. बट या here our weights are just linear. So कोई quadratic equation नहीं आ रही, और कोई logarithm नहीं आ रहा, कोई exponential नहीं आ रहा. This is how we can say that this is an linear in respect to your parameters w. So we are saying that this is this linear discriminant function. It doesn't matter whether your x is linear or not, but yeah, we are focusing on
are wi's. So this is our linear discriminant function, and that is why we are supposed to be a linear discriminant function. So again, I'm saying that again consider this data. This is a real world data, or this data is being widely used for your initial examples for your machine learning. और आप जब machine learning पढ़ेंगे, होप सो आपके सिलेबस में आएगा, तो ये एग्जांपल आपके पास बार बार आएगा. तो लेट्स से दिस इज माय x1, this is my x2, this is my x3, this is my x4. तो ये x1, x2, x3, x4 कैटेगोरिकल भी हो सकता था, कंटिन्यूस भी हो सकता था, इट डजंट मैटर. दिस इज माई y एंड दिस इज माई y. y के पास मेरे पास कौन सी वैल्यूज आ रही है? y या तो नो ले रहा है या यस ले रहा है. तो वी कैन से दैट y इज इन सम फंक्शन. सो दिस इज माई y इज सम फंक्शन ऑफ योर एक्सिस विथ सम अननोन पैरामीटर. इनका कुछ कॉम्बिनेशन होगा ना, x1, x2, x3, x4 का कुछ कॉम्बिनेशन होगा. तो कुछ कॉम्बिनेशन क्या होगा? इस पे कुछ वेट्स होंगे. ये वेट्स कोई भी रियल नंबर हो सकता था. तो दिस इज हाउ वी कैन से दैट this is a function. So अब हमारे पास let's say एक simple सा training set है. This is training set, this is an xi. So this is my training set. This is x1, x2, x3, x4. This is a training set and this is my y. So this y. So this is my training set. अब इस training set में क्या है? मेरे पास एक simple सा क्वेश्चन है कि मेरे पास ऐसा आउटलुक है, ऐसा टेम्परेचर है, ऐसा ह्यूमिडिटी है, ऐसे विंड कंडीशन है. तो मैं टेनिस खेलता हूँ या नहीं खेलता? तो मान लीजिए कि मेरा आउटलुक सनी है, मेरा टेम्परेचर हॉट है, ह्यूमिडिटी भी हाई है, इट इज़ नॉट विंडी. सो मैं टेनिस नहीं खेल सकता. बट मेरा आउटलुक सनी है, मेरा टेम्परेचर हॉट है, मेरी ह्यूमिडिटी हाई है और इट इज़ विंडी. सो मैं फिर टेनिस नहीं खेल सकता. तो आप यहाँ देखो, दोनों केस नियर अबाउट सिमिलर हैं और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू भी ले रहा है. तो भी ये दिस इज we can say that it is not suitable for playing your टेनिस. सो आपके पास ऐसी कुछ कंडीशन हो सकती है. हो सकता है कि सेम टू सेम एक इंस्टेंस आपके पास यहाँ आ रहा हो और वैसा के वैसे ही सेम इंस्टेंस आपके पास यहाँ आ रहा हो, दोनों की वैल्यू एक जैसी हो, पर आपका आउटपुट यहाँ पर नो होगा, आपका यहाँ आउटपुट यस होगा. इट डजंट मैटर. तो हमारे पास अभी देखने वाली चीज़ क्या है? हमारा जो आउटलुक है वो 4 तरह की वैल्यू ले रहा है. जैसे सनी, ओवरकास्ट, रेनी. ओके, 3 तरह की वैल्यू ले रहा है. दिस इज सनी, ओवरकास्ट एंड रेनी. आपका टेम्परेचर कितनी वैल्यूज ले रहा है? दिस इज हॉट, माइल्ड एंड कूल. अगेन मेरी ह्यूमिडिटी क्या वैल्यू ले रहा है? दिस इज हाई, नॉर्मल. ओके फाइन, ये 2 तरह की वैल्यू ले रहा है. एंड विंडी, दिस इज ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. सो 2 तरह की वैल्यू ले रहा है. एंड प्ले टेनिस, दिस इज माय आउटपुट वेरिएबल. हम ये कि क्या तरह की वैल्यू ले सकता है? हो सकता है टेम्परेचर हॉट हो, नहीं हो. मैं लिख सकता था यहाँ 17 डिग्री या 18 डिग्री, सॉरी दिस इज 17 डिग्री, 18 डिग्री, या 5 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री. इट डजंट मैटर. बट या दिस इज हाउ वी आर डिपेंडिंग ऑन. सो इन दोनों के डिपेंडेंस पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है. तो ये डिफरेंस था हमारे पास कि हमारे पास जो रिग्रेशन आ रहा था और हमारे पास क्लासिफिकेशन आ रहा था. क्लासिफिकेशन में हमारे पास वैल्यू आ रही थी. सो दिस ट्रेनिंग सेट, सो सच ट्रेनिंग सेट इज सेट टू बी लीनियरली सेपरेबल. अगेन मैं बोल रहा हूँ, दिस test is said to be linearly separable if there exists some w star. So there exists some w star. This is my w star. There exists some w star such that this x, the multiplication of this x and w, this multiplication of x and w, I am just writing like this is x w. या हमने x beta लिया था. This is x beta. तो this is x beta is like if this is greater than 0, then we can say that this is no, and if this is less than 0, then we can say that this is yes. Fine. So हमारी जो ये लाइन बनी थी, let's say this is my x beta, और ये हमने estimation भी निकाला भी था. This is my predicted line. So this is predicted line is just an x beta, or we can say that yeah, this is my predicted line. So this is my x beta. तो कुछ इस लाइन से ऊपर होंगे, कुछ लाइन इस लाइन से नीचे होंगे. तो ये हमारी लाइन क्या होगी? ये हमारी लाइन कुछ होगी x बीटा. तो दिस इज x बीटा. अब इसकी वैल्यू, अब इसमें कुछ वैल्यूज, ये हमारी लाइन थी, अब इसमें हम x की वैल्यूज रखते जाते हैं. जैसे ही हम x की वैल्यू रखते जाते हैं तो x की वैल्यू या तो हमको ये पॉजिटिव वैल्यू देगा या हमको नेगेटिव वैल्यू देगा. तो अगर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो हम बोल रहे हैं कि इस तरफ की वैल्यू. अगर हम ये बोल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू, तो हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू इस तरफ की है. दिस इज हाउ वी कैन क्लासीफाई. This is just an your separating function. So this is again we are saying that if it is greater than 0, then we can say that this is an yes, and if it is less than 0, then it is yes, and it is greater than 0, then this is no. So this is how we can classify. And any
this W star, this and W star is just in your state. So this set that satisfy your above this above lines or this above training set is called your separating hyperplane. Why I'm saying this hyperplane? Because we are considering this 2-dimension data, so this is a single line. If we are considering this 3-dimensional data, so for this 3-dimensional data आपको जब इसको क्लासीफाई करना था तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास एक प्लेन आ रहा था. अगेन जस्ट वो आप देखो आपके पास जब वेक्टर स्पेस आ रहा था, आपने जब लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, लीनियर अलजेब्रा में आपके पास वेक्टर स्पेस आता था. तो अगर मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास दिस इज 3-डायमेंशन डेटा है, तो 3-डायमेंशन डेटा को के लिए वेक्टर स्पेस मेरा एटमोस्ट कितने पे जाता था, मेरा 2-डायमेंशन पे जाता था. मतलब ये 3-डायमेंशन था तो मैं प्लेन पे जा रहा था. फाइन. अगर मेरे पास 4-डायमेंशन था तो मेरे पास एक हाइपर प्लेन हो रहा था जिसका डायमेंशन 3 था. अब मेरे पास प्लेन है, प्लेन से आगे बढ़ रहा हूँ. अब मेरे पास 5-डायमेंशन था तो मैं 4-डायमेंशनल कोई ऐसा प्लेन होगा, 4-डायमेंशनल प्लेन होगा, 4-डायमेंशनल आ गया तो मैं उसको बोल रहा हूँ हाइपर प्लेन. तो वो हाइपर प्लेन होगा जो डेटा को क्लासीफाई कर रहा है. अगर हमारे पास 10-डायमेंशन है तो मेरे पास एटमोस्ट एक 9-डायमेंशन का हाइपर प्लेन होगा जो हमारे डेटा को क्लासीफाई करेगा. सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग दैट दिस इज सपोज्ड टू बी एन हाइपर प्लेन एंड देयर एग्जिस्ट infinitely many hyperplane exist if it is an linearly separable. Again I am saying that this is an linearly separable. हम linearly separable पे आते हैं. Let's say simple सा example, हम truth table पे आते हैं. तो this is my x, this is my y and this is x or y, this is x and y, this is x or y and x nor y. ये टेबल आपको आती होगी, मैं इतना मानता हूँ, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी. Is it fine? Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Yes, Fine. Yes, sir. So Yes, this sir. is okay, fine. So this is my x matrix, fine. This is my 0 0. This is my 0 1. This is my 1 0, and this is my 1 1. इतना आपको पता है. तो ये मेरी 1 2 3 4, मैं इसको लिख लेता हूँ 1 2 3 और 4. ये मेरे पास 4 पॉइंट है. दिस इज 1 point, this is 2 point, this is 0.3 and this is 0.4. मेरे पास ये 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं. फाइन. अब मैं इस पे XOR फंक्शन लगाता हूँ. ठीक है, XOR फंक्शन. तो 0 0 मेरे पास आ रहा है, तो 0 0 पे मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 0. तो मैं XOR का आउटपुट यहाँ लिख देता हूँ 0. अगेन 0 1 का आउटपुट, तो 0 1 का आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है, तो 0 1 का आउटपुट मेरे पास आ रहा है 1. तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया. देन 1 0 का आउटपुट भी मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. फाइन. सो XOR का आउटपुट मेरे पास 1 0 का आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है, तो दिस इज अगेन 1 एंड दिस इज अगेन 1. तो मैं एक ऐसी लाइन, अब ये आउटपुट पे देखना, बाकी सारे पॉइंट मत देखना. दिस इज 1 1, दिस इज 1 और एक यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0. फाइन. सो हम क्या एक ऐसी लाइन डिफाइन कर सकते हैं जो इन 1 और 0 को सेपरेट कर सकती है. हम बिल्कुल कर सकते हैं. हमारे पास एक लाइन यहाँ से भी पास हो सकती है और यहाँ से भी पास हो सकती है, जो आपको लीनियरली सेपरेबल मतलब एक लाइन जो सारे डेटा को तो अलग अलग भाग में या अलग अलग भाग में डिवाइड कर रही है, एक लीनियर लाइन. फाइन. मेरे पास ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास जैसे कुछ ऐसा डेटा है, this is one type of data, this is again another type of data, again this is another type of data, this is that. तो अगर मैं इनको सेपरेट करना है तो मैं कुछ ऐसी बाउंड्री लाइन कंडीशन खींच सकता हूँ. दिस इज नॉट एन लीनियरली सेपरेबल. मैं कोई एक ऐसी लाइन नहीं खींच सकता था कि ये एक अलग पार्ट हो गया या एक अलग पार्ट हो गया, ऐसा. ये दिस इज नॉट एन linearly separable. So this condition is not linearly separable, but this is an linearly separable. Again हम x and y को लेके चलते हैं. x and y में मेरे पास 1 का आउटपुट आ रहा है, दिस इज 0 अगेन, दिस इज अगेन 0, देन दिस इज अगेन माय 0 एंड दिस इज अगेन माय 1. तो मेरे पास 3 0 आ रहे हैं यहाँ पे, है ना. ये मेरा आउटपुट है, 3 0 आ रहे हैं और एक 1 आ रहा है. क्या ये मेरा लीनियरली सेपरेबल है? Yes, sir. यस सर, हो सकता है सर 1 से अगर हम हो start सकता है करें। क्या? है ना. ये 3 एक तरफ है, ये 3 है हमारे एक तरफ है और ये एक तरफ है. तो हम इसको एक सिंगल लाइन से लीनियरली सेपरेबल कर लेते हैं. मैं जरा इसको हटा देता हूँ
और हटाने के बाद वापस आता हूँ ताकि हमारा थोड़ी गंदगी ना दिखे, तो मैं इसको वापस आ देता हूँ अगेन। फाइन, सो हम देखते हैं दिस इज x और y, x और y में पॉइंट 1 पे मेरे को आउटपुट दे रहा है, दिस इज सॉरी, so my pen again, I'm using my pen, so this is my 0, मैं x और देख रहा हूँ, this is my output is 1, another output is 1 and this is my output is 0। क्या ये linearly separable है? No, sir. No, sir. नहीं No, सर। sir. No, sir. नहीं। No, sir. फाइन, थैंक यू। अगेन हम x नॉर देख रहे हैं, तो x नॉर में हमारे पास दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। क्या ये linearly separable है? नो सर। नहीं। फाइन, थैंक यू, मेरे को No, ये sir. समझाना था। फाइन, No, sir. तो आप लोगों को समझ में आ गया linearly separable नाम की चीजें क्या होती हैं? Yes, Yes, sir. आ sir. गया. Yes, Okay. yes, sir. यस सर। Again we are moving again for our discriminant analysis. So let's say my feature vector is x and my class label is y. So what is my, this is my feature vector is x and this is my feature vector is y. Is it fine? So I'm starting again with, let's say my feature vector is x and my class label is y. So मेरे पास class label पता है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास class label 2 हैं या 3 है, पर हाँ मेरे पास class label है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने हैं। Then we are starting with again my Bayes rule। तो मेरे पास दो कंडीशन हो सकती है, मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ जा सकता था, मैं प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स से प्रोबेबिलिटी के साथ जा सकता था, मैं प्रोबेबिलिटी के साथ ज़्यादा अच्छे से जा सकता हूँ क्योंकि वो आपको इजी रहेगा समझना, और हम लोगों ने उस पर काम अभी करा भी है। सो अगेन, so the Bayes rule says that if you are having some joint distribution of x and y, so this is my joint distribution of x and y, ये हमारा पूरा डेटा है, this is joint distribution of your x and y, so this is whole, ये आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। आपके पास डेटा है, ये आपके पास एक्सेस है, और ये लाल और नीला है, दिस इज वाई। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस इज एन जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। फाइन, तो इतना अगर हम इसको समझ सकें तो दिस इज माय जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। सो एज पर द Bayes rule said, if you are having the just joint distribution of x and y and if x is given under your 0-1 loss, then the decision on your y is to choose a class with having the maximum posterior probability given x. It means that हम 0-1 लॉस को भी छोड़ दें, हम सिर्फ Bayes रूल के हिसाब से आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। अब नया पॉइंट आया, लेट से कोई हमारे पास एक नया पॉइंट आया, दिस इज xi है ना। अब वो मान लो वो पॉइंट हो गया हमारा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो अब हमको चूज करना है कि ये वाला पॉइंट इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा या ये वाला पॉइंट इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। तो तरीका सबसे अच्छा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ निकाल लें, इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ निकाल लें। फाइन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ और इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ, तो हम क्या बोलें, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर पर्टिकुलर एक्स पॉइंट। हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ आएगी और इसकी प्रोबेबिलिटी इसके साथ आएगी, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम वो बोल देंगे कि ये वाला पॉइंट उसमें आता है। लेट्स से इसकी प्रोबेबिलिटी आई दिस लाइक एन 0.4 और इसकी प्रोबेबिलिटी आई दिस इज 0.3, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो इस क्लास पे डिपेंड करता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो सर प्रोबेबिलिटी मतलब कि सर हम्म, इसमें हम जो प्रोबेबिलिटी का बोल रहे हैं मतलब उसका मतलब ये है कि वो उस रीजन में फॉल कर रहा है कि नहीं। हाँ उस उसकी- रीजन में फॉल कर रहा है, वो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे आपसे बचपन में नहीं पूछते थे कि लेट्स से आदित्य किसका बच्चा है, पापा का है या मम्मी का, यस सर। तो आप हाँ, जिसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी निकलती थी आप बोल देते थे कि आदित्य मम्मी का लड़का है या आदित्य पापा का लड़का। सो दिस इज हाउ वी आर सेइंग दैट ये किसका है, ये रेड का है या रेड, ये ब्लू का है। सो दिस हाउ वी आर कैलकुलेटिंग। तो प्रोबेबिलिटी आप भी देखते थे, आप प्रोबेबिलिटी डिफरेंट फीचर्स पे निकालते थे कि मम्मी खाना देती है, पापा डांटते हैं, सो ऑन। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। तो हम आपके पास एट्रीब्यूट्स थे कि मम्मी खाना देती है, पापा डांटते हैं, पापा पैसे देते हैं, मम्मी
हमारा काम कर देते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। तो हमारे पास भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स पे डिपेंड करके हम चेक करते हैं कि ये इस क्लास में डिपेंड करेगा या उस क्लास में डिफाइन करेगा। सो हम क्लास कंडीशनल डेंसिटीज आइडेंटिफाई करेंगे। हम देखते हैं क्लास कंडीशनल डेंसिटीज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो again, so your discriminant analysis belongs to your branch of your classification method, that is your generative modeling। तो आप एक क्वेश्चन आप लिखें कि जनरेटिव मॉडलिंग होती क्या है, पढ़िएगा, मैं वाइवा में पूछूंगा what do you mean by this generative modeling। So we try to estimate the within your class density of your x given your class level। so हम क्या बोल रहे हैं कि हम निकालने की कोशिश करेंगे what is the probability of your xi given your class level and your whole पूरा डेटा। तो इसके हिसाब से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो द कंबाइंड प्रायर प्रोबेबिलिटी, दैट इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ योर क्लास एंड योर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ y कैन बी ऑब्टेन्ड बाय योर बेस फार्मूला। सो अगेन आई एम सेइंग दैट वी आर अज्यूमिंग दैट आवर प्रायर प्रोबेबिलिटीज आर योर जस्ट अ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैंने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई थी। सो assuming that our prior probability or the marginal PMF, probability mass function for your class K is denoted by pi k। तो हमारे पास लेट से इस एग्जांपल में देखें कि हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं, हमारे पास लेट से हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं। 100 पॉइंट में से ब्लू में मेरे पास मान लीजिए 45 हैं और रेड में मेरे पास 55 हैं। फाइन। सो मेरा पाई बी क्या हो गया, मेरा पाई बी हो गया 0.45 और मेरा पाई आर क्या हो गया, दिस इज प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी मतलब पहले से मान के चलते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, दिस इज, ये आप लोगों ने शायद पढ़ लिया है, समझाने की जरूरत नहीं। सो दिस इज माय प्रायर प्रोबेबिलिटी इज पाई बी इज 0.45 एंड पाई आर इज 0.55। सो अगेन, so this is how we are saying that this is my probability and summation of all those probabilities again summed up to 1। इतना हमको पता है। Now, so your pi k is usually estimated by simple empirical frequencies like the number of samples in your particular class upon the total number of samples। तो हमने निकाला था this is 45 upon 100 or 55 upon 100। so this is your posterior probability। now we are going for the class conditional densities, जो हमको probabilities निकालनी। तो what is my class conditional density? This class conditional density x conditioned on your class x, the density of x conditioned on your class x for class g equals to k। तो हमारे पास कोई class k से रिप्रेजेंट करता है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज एफ के ऑफ एक्स। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर पर्टिकुलर पॉइंट, अभी हम ट्रेनिंग सैंपल्स पे चल रहे हैं और उसके बाद हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर आते हैं वापस हमारे इस एग्जांपल पे। तो अभी हम इस xi को छोड़ देते हैं, ये हमारा पुराना ट्रेनिंग डेटा है। तो अब हम ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग कैसे करते हैं, पुराने डेटा से करते हैं। तो पुराने डेटा से हम कर सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, हम किसी एक पॉइंट को ले लें, लेट्स से दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर पर्टिकुलर पॉइंट, कि इसकी प्रोबेबिलिटी ब्लू है गिवन योर ऑल डेटा, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हम इसको yi बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज रेड गिवन योर डेटा। तो हम यहाँ से कंप्यूटेशन चालू करते हैं। हमने यहाँ से वापस कंप्यूटेशन चालू करा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर क्लास बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट corresponds to your particular class k when your particular data is just like your x। तो ये probability कैसे निकलेगी, दिस इज जस्ट एन योर बेस फॉर्मूला। सो दिस इज योर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, दिस इज योर प्रायर प्रोबेबिलिटी जो हम लोगों ने निकाली थी, एंड दिस इज सपोज टू बी, इसको क्या बोलते हैं, बेस फॉर्मूला। बताओ भाई। लाइक्लीहुड, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। यहाँ पे लाइक्लीहुड में क्या होगा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर एक्सेस गिवन योर पर्टिकुलर y।
क्योंकि ये हमको तो एस्टिमेट करना है, ये एस्टिमेट करना है, तो ये एस्टिमेट कैसे करेंगे, ये कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम लाइक्लीहुड से निकालेंगे। लाइक्लीहुड क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज लेट्स से इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ चुन्नू, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पॉइंट x इक्वल्स टू चुन्नू when your y is blue, and what is the probability of your x equals to chunnu where y equals to red। ऐसे हम सारे डेटा पर ट्रेन करेंगे। इज इट फाइन? ये समझ में आया? एक इस पॉइंट Yes, के sir. निकालेंगे, फिर इस पॉइंट के निकालेंगे, इस पॉइंट के निकालेंगे। तो जब हम मशीन लर्निंग पे बात करते हैं तो मशीन लर्निंग पे हम बोलते हैं कि हमारे पास जितना डेटा होता है उतना अच्छा होता है, तो हम हर पॉइंट पर हर किसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेटा का लाइक्लीहुड मिलेगा। दिस इज लाइक्लीहुड ऑफ योर डेटा। इज इट फाइन? मैंने लाइक्लीहुड पढ़ाया भी था लास्ट क्लासेस में। सो दिस इज योर लाइक्लीहुड ऑफ योर डेटा। तो हमने लाइक्लीहुड ऑफ योर डेटा निकाल लिया, हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, एंड दिस इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी थी अपॉन सारे पॉइंट की प्रोबेबिलिटी। सो सारे पॉइंट की प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पर निकाल ली, तो हमारे पास वैल्यूज आ गई हर एक पर्टिकुलर पॉइंट की, तो हम इससे लाइक्लीहुड से हम हमारा डेटा निकाल लेंगे। सो अब एस्टिमेट करें, हमको पता ही नहीं है कि हमको एस्टिमेट, हमको चीज़ें क्या करनी है, तो हम अब एस्टिमेट करें, तो हम हमारा एस्टिमेशन कैसे करेंगे, तो हमारा एस्टिमेशन करेंगे बाय मैक्सिमम अ पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी। हमने अभी तक क्या करा था, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन पर काम करा था। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हम क्या मान के चल रहे थे कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी सबके लिए बराबर है, दिस इज 1/2 एंड 1/2, पर यूजुअली दिस इज नॉट 1/2। तो जब ये 1/2 नहीं है तो इसको हम कांस्टेंट नहीं रख सकते, तो इसको हम दोनों वैल्यू से इंक्लूड करते हैं। जब हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे काम करते हैं तो हम ये प्रायर प्रोबेबिलिटी को हटा देते हैं। जब हम मैक्सिमम अपोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं तो हम ये आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी पे भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी आर एस्टिमेटिंग व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। हम काय पे आर्गुमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास इस k की प्रोबेबिलिटी काय पे मिलेगी, हमको k की प्रोबेबिलिटी रेड के लिए भी मिलेगी और ब्लू भी मिलेगी। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको सबसे ज़्यादा मिलेगी, लेट्स से k इक्वल्स टू रेड एंड k इक्वल्स टू ब्लू, तो हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी आएगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हम वो बोल देंगे कि हमारा वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो उस पॉइंट को, उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इतना समझ में आया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? sir. Yes, sir. कोई ओके फाइन। सो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे और ये लेक्चर्स आप एक बार सुन लेना, उसके बाद मैं कल आपको डेंसिटी एस्टिमेशन पर काम Hello, करूँगा। sir. हाँ बोलें। Hello, sir. हाँ Sir, बोलें। please extra class चालू कर लो ना आप। Extra Yes, class sir. ले लो ना सर आप। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.